मल्लिकार्जुन खड़गे जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट मंच पे पहुंच गए हैं। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। हमारे बीच आदरणीय राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं, आज दिल्ली पहुंचे और दिल्ली जिनके इंतजार में थी, दिल वालों की दिल्ली, आज वो दिल्ली राहुल जी के स्वागत में खड़े। जोरदार तालियों से राहुल जी का स्वागत करें। साथियों, हमारे लिए एक और गौरव की बात है, इस यात्रा में राहुल जी का साथ देने के लिए, जिस सोच के साथ राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं, उनका साथ देने के लिए बहुत बड़े फिल्म स्टार जिनको आपने कई फिल्मों में देखा है और आज एक नई भूमिका में एमएनएम पार्टी के चीफ आदरणीय कमल हसन साहब भी स्टेज पर राहुल जी का साथ देने पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। सांसद आदरणीय केसी वेणुगोपाल साहब जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वो मंच पर उपस्थित हैं। गणमान्य लोग इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। साथियों, भारत यात्रियों का भी हम स्वागत करते हैं, अपने नेता राहुल जी का स्वागत करते हैं जिस मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं पहली कड़ी में आदरणीय कमल हसन साहब जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे इस शहर, इस ऐतिहासिक शहर में आए कमल हसन साहब और हमें संबोधित करें। आदरणीय कमल हसन जी। Good evening. Rahul Gandhi ji, fellow Indians. Many ask me why I am here. I'm here as an Indian. My father was a congressman. I had various ideologies. I went around and I started my own political party. But when it comes to the country, all political party lines will have to blur. I blurred that line. I come here as Kamal Hassan, son of India. That's my address. I'm here. தமிழில் பேச வேண்டும் என்று இங்கே சொல்லியிருக்கிறார். A lot of Tamils are here. You translate. தமிழில் பேச வேண்டும் என்று திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் என்னை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். Rahul Gandhi ji asked me to speak in Tamil. I absolutely concede because he himself identified himself as a Tamil. I'm absolutely happy to do that because as Rahul Gandhi ji himself identified himself as Tamil. Okay, now I slipped into English, sorry. அதனால் அவரை என் சகோதரராக ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று இல்லை. இது இரண்டு கொள்ளுப்பேரன்மார்கள் கலந்து நடக்கும் யாத்திரை. Just because he identified himself as Tamil, I accept him as my brother, but we are the grandson of Tamils. Grandsons of India, great grandsons of India. He comes in Nehruji's line. I come like everybody else here from Gandhiji's line. So, இவர் நேருவின் கொள்ளுப்பேரன், நான் காந்தியின் கொள்ளுப்பேரன். He is Nehru's great grandson, I am Gandhi's great grandson. That relationship enough. There are many great grandsons in India and party alliances don't matter. Anytime there is a slight jam in our constitutional rights, we'll be there out in the streets. எந்த ஒரு நெருக்கடி
நம் கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வந்தாலும் நான் தெருவில் வந்து நிற்பேன். எந்த கட்சி ஆள்கிறது என்பதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை. Whenever the constitution is attacked, I will come in the street. I don't mind which party is ruling this country. நான் அதற்காகவே இங்கு வந்திருக்கிறேன். Because of that, I have come here. நான் முதலில் ஆங்கிலத்தில் தான் பேசுவதாக இருந்தேன். ஆனால் சகோதரர் பணித்தலால் தமிழில் பேசுகிறேன். I first intend to speak in English. Just because of my brother asked me to speak in Tamil, I am speaking. Now I'll slip into English. Okay, thank you. Before coming here, many people advised me, because I am a political party leader, and they said, don't go to Delhi, it'll affect your political career. My political career started because of the country, not because of myself. And now I'm here. I stood before the mirror and looked at myself and asked myself a question. This is a time when the country needs you. So I heard a voice from within. Kamal, Bharat तोड़ने की मदद मत करो, जोड़ने की मदद करो. Kamal is my name. I mean no innuendos here. So I've come here in a time when the country needs me. I am a Jawan, civil Jawan, living inside India and in one corner where he started this yatra from Tamil Nadu. This yatra, according to me, has just begun. There's much more distance to go. I'm not talking about the road walk. I'm trying to, what I'm trying to jodo is not just states. I'm trying to connect the glorious legacy of our past with a bright future that we deserve. That's why I'm here. Many people ask me about political alliances. That's another matter. I'm here, I reiterate, as an Indian. This is not a 5-year plan. This is a plan for eons, for generations to come. And that's how this country should be. And I want to set an example for my people, my party, my state, that when it comes to the country, forget about the color of the flag. There is only 3 colors, that's the national flag. And that's why I'm here. I respect Rahulji for taking up this brave move. It's been done before and now it's happening again. I congratulate him. I ask him, I'll cheer him like you are through the yatra, and we will meet and talk again. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद सर। और मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय आज के इस सभा को संबोधित और इनोग्रेशन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कि आए और हमें संबोधित करें। भारत जोड़ो यात्रा में खासकर यहाँ पर पधारे हुए मेरे हजारों भाइयों और इस मंच पर बैठे हुए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और इस कार्यक्रम को विशेषकर तमिलनाडु से पधारे हुए बहुत ही मशहूर एक्टर कलाकार
श्री कमल हासन जी और अभी तक हमारे साथ हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी यहाँ पर थी और उनको भी मैं नमस्ते करते हुए कांग्रेस पार्टी के श्री वेणुगोपाल जी और जयप्रकाश अग्रवाल जी, शक्ति सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री चौधरी अनिल कुमार जी और सभी नेतागण, भाइयों और बहनों और माध्यम के मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता क्योंकि राहुल गांधी जी जो आज भारत जोड़ो पदयात्रा कर रहे हैं और उनकी बात सुनने के लिए आप यहाँ पर बहुत से लोग जमे हुए हैं। वो केवल एक दिन का भी समय नहीं था कि यहाँ पर भाषण होगा, चार बातें कहेंगे, ऐसा कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन जब ये बात सुबह शुरू हो गई तो आज आप लोग हजारों के तादाद में यहाँ पर जमे हैं उनके भाषण सुनने के लिए, उनके कार्यक्रम को देखने के लिए। तो भाइयों, आज ये जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जैसा कि कमल हासन जी ने कहा कि पार्टी कोई भी हो, विचार किसी के भी हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन देश के लिए हम सब लोग एक हैं और राहुल जी के साथ है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर अपना विचार रखा। सही है ना? तो मैं पूछ रहा हूं ये सही है क्या नहीं? तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये वहां से आए हैं भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने के लिए और ये अभी आगे कश्मीर तक चलने वाली है और कश्मीर में तिरंगा झंडा फैलाकर हमारा जो ये कार्यक्रम है समाप्त होगा। लेकिन बहुत से स्टेट में फिर भी हम कार्यक्रम शुरू किए हैं, हाथ से हाथ जोड़ो ये कार्यक्रम, और जो युवा हैं आज बहुत इसमें जुड़ रहे हैं। लेकिन सरकार, ऐसी सरकार है यहाँ दिल्ली में, भारत में, जो जनता को, समाज को धर्म के नाम पर अलग कर रही है और विचारों की जो आदान प्रदान थी और बोलने की आजादी भी वो छीन ले रहे हैं। और बहुत से लोग जो अच्छे विचारधारा के लोग हैं उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। यहां तक कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा बड़ी यशस्वी हो रही है, कन्याकुमारी से लेकर अब तक तो दिल्ली आई है, ये देखकर यहां के सरकार को, बीजेपी को ऐसा हो रहा है, वो डर गए हैं, इसीलिए ये कोविड का बहाना बीच में लाए हैं। अरे कोविड नहीं है कहीं भी, कोई एक मास्क भी नहीं पहना, आप देखिए, और किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन अचानक हमारे प्रधानमंत्री अपने हेल्थ मिनिस्टर को कहकर ये कहा कि देश में कोविड बढ़ रहा है, इसका जरा प्रचार करो। तो ये प्रचार करके उन्होंने पार्लियामेंट में अपना मास्क लगा के वहां पर आए
लेकिन मैं उनको कहीं शादी में देखा, कहीं जाते, वहां पर वो मास्क नहीं लगाए थे, उनका मास्क नहीं था। अरे आप खुद मास्क बाहर नहीं पहनते हो, पार्लियामेंट में आकर ऐसा मास्क पहन के आते हो। यह सिर्फ डराने के लिए, आप में डर पैदा करने के लिए, लोगों में डर पैदा करके इस यात्रा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। और राहुल जी ऐसी कई चीजें देखे हैं अपने जीवन में, और ये भी उनको, अगर कोई भी कितनी भी मुश्किल हमारे सामने आएंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, किसी पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि देश में महंगाई है, महंगाई के खिलाफ आज ये आवाज उठा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। आज चीन हमारे ऊपर हमला कर रहा है, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। हमने भी बड़ी कोशिश की पार्लियामेंट में अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू पे बोलने का, इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे बोलने का, बॉर्डर पे जो चल रहा है आज, चाइना घुसपैठ कर रही है उसके ऊपर बोलने का। लेकिन ये सरकार बोलने नहीं देती और हमारी बात नहीं सुनती और चर्चा के लिए भी तैयार नहीं, चर्चा से भाग रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो पार्लियामेंट में चर्चा करो, लोगों को मालूम होने दो कि आप किस मंशा से, किस नियत से आपको चर्चा छुपाना चाहिए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में ये बात आई थी चाइना का हमले का, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पार्लियामेंट में चर्चा के लिए तैयार हो गए। 165 एमपीज उस चर्चा में हिस्सा लिए। 1965 में भी चर्चा हुई, उस वक्त विदेश नीति पर, उस वक्त भी 3 दिन चर्चा चला। इस ढंग से कांग्रेस पार्टी जब भी हुकूमत में होती है, उस वक्त कोई चीज छुपाती नहीं, सभी लोगों को बताती है, जनता को बताती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी आप क्यों छुपा रहे हो? आप क्यों पीछे हट रहे हो और चर्चा से क्यों भाग रहे हो? हम ये पूछना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी की आइडिया है, राहुल जी ने निकाला और उसको अनुष्ठान में लाया। अब तक उन्होंने 3200 किलोमीटर तक अपना तय किया है और आगे भी वो पूरा 2800 किलोमीटर उन्होंने तय किया है। बाकी का भी जल्दी तय करने वो जा रहे हैं। इसमें कोई पिछाहट नहीं है, चाहे वो कोविड हो, चाहे कुछ भी हो, हम वो चलते जाएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे, लोगों को मिलते जाएंगे। और राहुल जी सिर्फ किसी कांग्रेस को ही नहीं मिल रहे हैं या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं, सभी को, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और विद्यार्थी से लेकर प्रोफेसर तक, जर्नलिस्ट से लेकर टीवी के लोगों तक, सभी से वो मिलकर उनकी बात सुन रहे हैं और सुनकर आगे बढ़ रहे हैं। और देश में क्या माहौल है वो सब उनको मालूम है और वो मालूम कर रहे हैं। और देश में भी सबको अब आहिस्ता आहिस्ता ये बात मालूम हो रही है। इसीलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आपको यही कहूंगा, आपका जो रिस्पांस है, आप जो राहुल गांधी जी को मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हो गए हो, इसलिए आपको सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार करता हूं, करके मेरे बात को समाप्त करता हूं। एक ही स्लोगन लगाऊंगा, वो आप सभी बोलना चाहिए।
जय हिंद। अरे जोर से बोलो भाई, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। और अब मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले एक छोटा सा एक प्रतीक चिन्ह राहुल जी की इस यात्रा के लिए। खारगे जी, भैया इसको थोड़ा उल्टा करके इसको घुमा देंगे जरा, इनको घुमा दीजिए। खारगे जी, कमल हसन जी, वेणुगोपाल जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, अनिल जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपने इतना समर्थन इस यात्रा को दिया, इतनी मदद की, इतनी शक्ति आपने हमें दी, इसके लिए मैं सबसे धन्यवाद करना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का है। जब हमने ये शुरू किया कन्याकुमारी में यात्रा शुरू की, तो मैं सोच रहा था कि नफरत को मिटाने की जरूरत है, और मेरे दिमाग में था कि इस देश में सब जगह नफरत फैली हुई है, मगर जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। मैंने मीडिया के बारे में कहा, शुरुआत में कहा कि हमारे दोस्त हैं, दोस्त हैं, मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। और वो तो तब भी ठीक है, वो ठीक है, हमारी बात नहीं उठाएं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये एक और काम करते हैं, इनकी गलती नहीं है। देखिए, ये जो यहां खड़े हैं, इनसे गुस्सा मत होइए, इनकी गलती नहीं है। देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, ये जान पे लगाम लगी हुई है, पीछे से लगाम लगी हुई है, मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं।
गले लगते हैं। तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे जो शक्ति है, इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है। तो सवाल उठता है ये क्यों हो रहा है, जब सच्चाई ये है कि देश का आम नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, वो एक दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है। 90% लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। देखिए मेरे सामने, ये देखिए, घूम के देखिए, ये जैन मंदिर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ये है हिंदुस्तान। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की, और ये नई बात नहीं, ये हजारों साल से इस देश की सच्चाई है। प्यार से ये देश मिलकर एक साथ रहा है। तो सवाल उठता है, ये जो मीडिया के लोग हैं, ये नहीं, जो इनके पीछे हैं, ये नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं? आपने कभी पूछा अपने आप से कि मीडिया 24 घंटा कभी मोहब्बत की बात नहीं करेंगे? कभी आपने देखी है? कभी टीवी पे देखा कि देखो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से गले लग गया? कभी देखा? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। सही बात है ना? सही बात, कभी नहीं दिखेगा। इसका कारण है भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी का कभी जेब काटा गया है? आपका जेब काटा गया? आपका जेब काटा गया? तो जब जेब काटा जाता है, आपका काटा गया ना, तो जब कोई आपका जेब काटता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? नहीं, ब्लेड तो बाद में आता है, मगर पहले क्या करता है? पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है, आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है। भाई और बहनों, ये जो करा जा रहा है, आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है, और ये 24 घंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है। बढ़िया, बढ़िया, क्योंकि सच्चाई है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। ये सच्चाई है, और ये पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800, मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी। मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूं, 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। जो सच्चे मुद्दे हैं उस पे आपका ध्यान गलती से ना चला जाए। जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है, वो चाहता है कि आपका ध्यान आपके जेब पे गलती से भी ना चला जाए। ये हो रहा है इस देश में। तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका ध्यान जो हिंदुस्तान के युवा हैं उनकी ओर जाना चाहिए। आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा मैंने इंजीनियरिंग की,
मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ा, मैंने आईएएस के लिए तैयारी की, मैं जज बनने की कोशिश कर रहा था। पूछो क्या किया, पढ़ाई की, कितने साल की, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब पढ़ लिए, और फिर क्या हुआ? आज क्या करते हो? मजदूरी करता हूं, पकौड़े बनाता हूं। बेरोजगारी क्यों आई, मैं आपको बताता हूं। और जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि आप इस देश के भविष्य हो। अगर इस देश को कोई रोजगार दे सकता है तो इस देश का किसान और ये जो छोटे व्यापारी हैं और स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस चलाते हैं, ये लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये लाखों हैं, ये लाखों में हैं, और कोई 100 लोगों को रोजगार देता है, कोई 500 को देता है, कोई 1000 को देता है, कोई 25 को देता है, कोई 35 को देता है, और ये लोग देश को रोजगार देते हैं। अब इनकी बात करते हैं। ये 24 घंटे लगे रहते हैं, बैंक के दरवाजे इनके लिए बंद होते हैं। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ ऐसे दिया जाता है। ये बैंक के सामने जाते हैं, इनको धकेल के निकाल दिया जाता है। राइट? अब क्या? ठीक है, बैंक का पैसा नहीं दिया तभी मान ली बात, तब भी मान ली बात, मगर फिर क्या किया? फिर प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की और प्रधानमंत्री ने गलत जीएसटी लागू की। भाई और बहनों, ये पॉलिसी नहीं है, ये हथियार है। छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को और किसानों को मारने के हथियार हैं ये। और जब इन्होंने ये काम किया तो देश के जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल सकता, सवाल नहीं उठता, क्योंकि जो रोजगार देने वाले हैं उनकी रीढ़ की हड्डी आपने तोड़ दी। किसके लिए तोड़ी? किसके लिए तोड़ी? इनके जो मालिक हैं उनके लिए तोड़ी। गेम को समझो। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। युवाओं की बात की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों की बात की, दुकानदारों की बात की। अब सड़कों पे मुझे हजारों किसान मिले हैं, एक सेकंड में पहचान लेता हूं, जैसे ही हाथ मिलाता हूं समझ आ जाता है ये मजदूर है या ये किसान है, हाथ से पता लग जाता है, छिले हुए हाथ होते हैं। अच्छा, एक और सवाल है जो मैं सोच रहा हूं। प्रेस वाले ने मुझे पूछा क्या आपको ठंड नहीं लगती? और मैंने सोचा ये मुझसे पूछ रहे हैं, ये हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के मजदूर से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते? फिर कहते हैं देखो 2800 किलोमीटर चल लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान चलता है, जिंदगी भर चलता है, किसान चलता है, मजदूर चलता है, फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो चलते हैं। तो हमने ये कोई बड़ा काम नहीं किया भाई और बहनें, पूरा हिंदुस्तान करता है, रोज करता है। हम 2800 किलोमीटर चलते हैं, किसान शायद जिंदगी में 10,000, 15,000, 20,000 चल लेता है। तो मैं चाहता हूं कि ध्यान सही जगह जाए। अब बीजेपी ने धर्म की बात उठाई है,
हिंदू धर्म की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि गरीबों को, कमजोर लोगों को कुचलना चाहिए? कहां लिखा है? कहां लिखा है कि कमजोर लोगों को मारना चाहिए? कहां लिखा, मुझे बताओ। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं, कहीं नहीं पढ़ा मैंने। आपने पढ़ा कहीं? गले लगाने की बात होती है। अच्छा ठीक है, देखिए अब ये लोग देश में डर फैला रहे हैं। नफरत नहीं दिखी मगर डर दिखा। किसके दिल में डर? किसान के दिल में, युवाओं के दिल में, छोटे दुकानदारों के दिल में, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं उनके दिल में, माताओं बहनों के दिल में। मुझसे कहती है, राहुल जी बीजेपी की सरकार में हम तो सड़क पर, शाम को सड़क पर नहीं निकल सकते। तो डर फैला दिया है। सही सही। अच्छा, आपने शिव जी की फोटो देखी है? उसमें उनका हाथ ऐसे देखा आपने? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको अभय मुद्रा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डरो मत। तो शिव जी कहते हैं डरो मत, हिंदू धर्म कहता है डरो मत, और ये लोग 24 घंटा इस देश में डर फैलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और मजे की बात बताता हूं आपको। मैं सोच रहा था, आपने ये यात्रा देखी होगी, इसमें आपको हिंसा दिखी? कहीं नहीं दिखी? किसी ने किसी को मारा? किसी ने गाली दी? नहीं। आपने इसमें नफरत देखी? बिल्कुल नहीं। इसमें किसी ने यह पूछा भैया तुम्हारा धर्म क्या है? किसी ने कहा भाई तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो? नहीं। किसी ने यह पूछा तुम स्त्री हो या पुरुष हो? किसी ने यह पूछा तुम्हारी क्या जात है? बिल्कुल नहीं। कपड़े भी नहीं पूछे, कपड़े भी नहीं पूछे। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा या नहीं, इसमें कुत्ते भी आए। कुत्ते भी आए इसमें, कुत्ते आए। और आपने, अगर आप टीवी देख रहे होते, आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा। इसमें गाय भी आई, भैंस भी आए, सुअर भी आए, मैंने देखा। वो तो सब जानवर आए, सब लोग आए, और यहां पे कोई नफरत नहीं थी। जैसा हमारा हिंदुस्तान है वैसे ही ये यात्रा है। कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई गलत सवाल नहीं। कभी कभी कोई गिर जाता, जैसे हमारे हरियाणा के पीसीसी गिरे, धड़ाम से गिरे, केरला के सब नेता गिर गए, 1 सेकंड में लोग उनको उठा लेते थे। 1 सेकंड में, टाइम नहीं लगता था। यह है हिंदुस्तान। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, सच्चाई समझनी होगी। सच्चाई यह है कि जैसे इन पर लगाम लगी हुई है, वैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पे भी लगाम लगी हुई है। उनकी गलती नहीं है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको कंट्रोल कर दिया है।
नहीं, मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। क्योंकि आप देखिए, एयरपोर्ट भी उनके, पोर्ट भी उनके, एग्रीकल्चर के स्टोरेज डिपो भी उनके, और क्या उनका, हाँ, लाल किला भी उनका, लाल किला भी उनका, सारे के सारे पब्लिक सेक्टर की कंपनियां उनकी, और क्या उनका, रेलवेज उनकी, अभी भाइयों और बहनों ताजमहल भी चला जाएगा, तो सब कुछ उनका। तो ये देश की सच्चाई है। हाईवे भी उनके, सेलफोन भी उनके, मगर सच्चाई हमारी। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपको मैं बताता हूं, अपनी कहानी बताता हूं। जब मैं राजनीति में आया, 2004 में आया, हमारी सरकार थी, चुनाव जीते थे, और ये प्रेस वाले 24 घंटा मेरी प्रशंसा करते थे। 24 घंटा, 24 घंटा राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। फिर मैंने क्या किया, मैं चला गया भट्टा परसोल। नहीं सुनो, आपको समझना है ये है क्या। मैं भट्टा परसोल गया और मैंने किसानों का जो जमीन का मामला है उसको छेड़ दिया। और भाई और बहनों, जैसे ही मैंने किसानों का जमीन का मामला छेड़ा, वैसे ही ये मेरे पीछे पड़ गए। उसके बाद जमीन अधिकरण बिल, भट्टा परसोल के बाद जमीन अधिकरण बिल लाया, कांग्रेस की सरकार लाई। उसके बाद तो पूरा फुल टाइम 24 घंटा मेरे पीछे पड़ गए। प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने, मैं आपको सच्चाई के बारे में बताना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मेरी छवि को खराब करने में। हजारों करोड़ रुपए। और आपने देखा होगा, मैंने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। मैंने एक शब्द नहीं बोला। मैंने ये नहीं बोला भैया ये गलत बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है ना, मैं बिल्कुल चुप, चुप। क्योंकि मैंने कहा चलो देखता हूं कितना दम है, और लगाया। पूरी की पूरी मीडिया लग गई, व्हाट्सएप पे लगाया, फेसबुक पे लगाया, सब जगह 24 घंटा राहुल गांधी के बारे में। कुछ नहीं बोला मैंने, पूरे देश में फैला दिया। और फिर एक महीने मैंने आपको सच्चाई दिखा दी, और पूरा पूरा खत्म। देखो सच्चाई कैसे काम करती है। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है, कहीं ना कहीं से सच्चाई बाहर आ जाती है। और ये यात्रा हिंदुस्तान को जोड़ने की है। क्यों? क्योंकि इस नफरत से, इस डर से हमारे प्यारे देश को नुकसान हो रहा है। यह सच्चाई है, और इसीलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक शुरू की है। और ये जो हमारा तिरंगा है, इसको हम श्रीनगर में जाके वहां पे लहराएंगे। और आप में से हजारों लोग हमारे साथ चलोगे, हजारों लोग चलोगे। तो भाई और बहनों,
देखिए, सच्चा मुकाबला दुनिया में, सच्चा मुकाबला चाइना और हिंदुस्तान के बीच में है। ठीक है, चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया। तो भैया प्रधानमंत्री जी, अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है? और हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है? मगर देखिए, कंपटीशन आर्थिक है, मुकाबला आर्थिक है। ये आपके जो सेलफोन है, ये आपके जो शर्ट है, जूते हैं, इसके पीछे आप देखिए, प्रेस वालों के जो कैमरा है इसके पीछे देखिए, उसके पीछे आपको लिखा दिखेगा मेड इन चाइना। हमें शर्ट के पीछे, सेलफोन के पीछे, जूतों के नीचे मेड इन इंडिया लिखना है। और एक ऐसा दिन आना चाहिए जब शंघाई में कोई युवा नए जूते खरीदे, उसके नीचे देखे मेड इन न्यू दिल्ली इंडिया। ये हिंदुस्तान चाहिए, इसी से हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और ये हम करके दिखा देंगे। ये देश कर सकता है, करके दिखा सकता है। आप सबने इतना प्यार दिया, आपने इतना प्यार दिया। मैंने भाषण में राजस्थान में कहा था, आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आपने लाखों दुकानें खोल दी हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद सर। आप सभी बहुत दूर दूर से आए और आज की इस यात्रा में राहुल जी के साथ शरीक हुए। दिल्ली दिल वालों की है, आपने आज ये सिद्ध कर दिया। दिल्ली दिल वालों की